In Bihar, Simachal, citizenship isn't being decided by a court, but by a form. And in Kishanganj, India's most controversial voter list cleanup is underway. This is a region where Muslims form 68% of the population. It borders Nepal to the north and is long alleged to host infiltrators from Bangladesh. But now, under the Special Intensive Revision Process, or SIR, election officials are going booth to booth, name to name, to separate Indians from foreigners. India Today spent a week on the ground tracking what locals call the suspect list. What we found was alarming. Forms are being held back. Some residents are under quiet investigation. दूसरा है born in India, ये अलग है. In multiple suspect wards, India Today met individuals who had only an Aadhaar or a voter ID and no family or land records. तो वोटर आधार कब बने? वोटर आधार तो मेला दिन हम लोग बना जब फर्स्ट आधार है तब 2011 वोटर पांचटा वोटर बने हाँ ये दूसरा सारा तो कोनो डॉक्यूमेंट नहीं तुम्हारे पास सबसे पहले क्या हम नहीं करते When asked where he came from, he couldn't give a plausible answer. मतलब कहाँ था वो ये बाप दादा मतलब कहाँ था वो हमको भी पता नहीं है लेकिन हम लोग का जन्म यहाँ का है और आधार कार्ड बांधलो कभी जो आधार कार्ड बनलो तो लगभग 10 বছর কাল যদি এসে বলে যে তোমার প্রমাণ কি তুমি কি করে আধার বানিয়েছিলে তুমি যদি এই জবাব দাও তাহলে তো তোমাকে হেনস্থা করবে ওই কি বলবো আমার কাছে याद नहीं तो কি বলবো কোনো প্রুফ नहीं तो আমাকে आधार पहचान दिए आधार कार्ड दिए नंबर दिए मोबाइल नंबर दिए যে 11টা ডকুমেন্ট দিয়েছে তার মধ্যে বলছে জমির কাগজ দিতে হবে পাসপোর্ট দিতে হবে বা স্কুলের 10 এর সার্টিফিকেট এগুলো কিছু আছে একটু একটু বুঝি না ছোটতে শুনো আমাদের পেছার We also encountered people who had no idea where they were from or if they had any documents at all. হ্যাঁ জানছিলি নাই তুমি কবে এসছো সেটা এখানে বলতে পারবে না আমি ছোট ছিল না ছোট থেকে হুঁ শোনো কেমন করে পেতারো মা বাবারা কোথায় বাংলাদেশে কোথেকে এসছে আর মারা হ্যাঁ রাতে ছিল মা বাবার নাম হ্যাঁ भाषा बदल ना हिंदी आती है हिंदी सर यहाँ पे कितने लोग हैं या फिर कितने शायद आप क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे लोग आपको दिख रहे हैं जिनके पास सिर्फ आधार और वोटर है बाकी डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है मुसीबत का शिकार हो रहे हैं ऐसे तो बहुत सारे होंगे गांव में लगभग ये 4-5 वार्ड मिला के गांव है ये बैरबन्ना गांव कहा जाता है तो मोटा माटी जिसके पास आधार और वोटर है वोटर आई कार्ड तो लगभग लोगों के पास है लेकिन इसके अलावा जो सबूत के तौर पर और वगैरह जो 11 प्रूफ जो मांगे गए हैं हम लोगों से तो इनमें से शायद ही मतलब किसी के पास होंगे लगभग मेरे आइडिया से 50% लोगों के पास ये वोटर आधार के अलावा कोई प्रूफ नहीं है जो हम लोग जमा करने के लिए असमर्थ हैं. This is how voters are being segregated. Category 1. If your name is in the 2003 voter list, you're cleared without any additional documents. There is no suspicion. Category 2. If your parents' name were in the 2003 list, you need to submit proof of parentage. Again, no inherent suspicion. Category 3. If neither you nor your parents were on the 2003 voter list, every document you submit is put through intense scrutiny. Then you're under high suspicion. India Today met the block statistical officer, a key coordinator in the revision drive, to understand the process. When we asked him about how they are identifying
This is what he says. After the bites, मतलब इससे ही किसी से बांग्लादेशी कितनी नहीं, अभी आपको कोई पता नहीं चलेगा। कैसे बताएगा? लोग नहीं पता चल सकता है ना, या अभी नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? जैसे कि अभी जो हम लोग निर्देश दिया हमारे वीडियो का, तो कुछ बूथ को कलेक्ट किया, कुछ बूथ को चिन्हित किया, तो उनमें से हमारे यहाँ का भी 3 बूथ चिन्हित है, हमारे यहाँ का भी 3 बूथ चिन्हित है, 14, 15, 16। अच्छा, ये 3 चिन्हित है। उसमें निर्देश दिया गया, पहले आप वैसे आवेदन को एक जगह कीजिए, उसकी संख्या बताइए कि जिसका 2003 में यहाँ नाम था, ऑलरेडी नाम था। ठीक है। उसके बाद वैसा हमको फिर मैंने संख्या बताइए, फॉर्म अलग कीजिए जिसका कि माँ बाप का 2003 में नाम था। अच्छा, जैसे हम पुत्र, हमारे पिताजी क्या है, हमारा जन्म उसके बाद हुआ है, तो हमारा वोटर लिस्ट में नाम 2003 के बाद आया, तो इसके लिए माँ बाप का ही डॉक्यूमेंट चाहिए, इसकी संख्या हमको। तीसरा है कि वैसे लोग जिनका माँ बाप का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है। अच्छा, ठीक है। 3 तरीके का अलग करने के लिए कहा है। 2003 में नहीं है, लेकिन अगर वो अब लगाया है तो हो सकता है वो कटिहार से आया हो सकता है पूर्णिया से आया हो, तो वहाँ से भी माँ बाप का लगाएगा वो। वैसा को ये चीजें। और एक और कहा है कि जिसका कोई माँ बाप का कोई नहीं है, जो सिर्फ अपने को वोटर साबित करने के लिए जो 2 गो सर्टिफिकेट लगाना है वो लगाया है, उसको अलग करना है। वही 2 गो वाले पर ज्यादा ये करने से कुछ उसमें आ सकता है। तो ये 2 गो वाले में कितने एप्लीकेशन हम कराए आपके पास? अभी तो आज तो बोला है, अभी तो सब ये लोग सब जो है 2 गो मतलब कि उसमें वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, आप ये कह रहे हैं? वो नहीं बता रहा है अपने फॉर्म। हाँ, कि हमारे माँ पिताजी का यहाँ पर 2003 में नाम था, और वो उसके लिए 2 गो सर्टिफिकेट 2004 के बाद 2 सर्टिफिकेट का है, तो वह 2 सर्टिफिकेट वो उसमें संलग्न कर रहे हैं, तो उस सर्टिफिकेट को देखा जाएगा। मतलब जिन लोगों के पास माँ बाप का 2003 का कोई प्रमाण नहीं है और अब सिर्फ अपना 2003 के बाद वोट डाल रहे हैं, उनके ऊपर संदेह का निगाह, ये है ना। और ये 3 बूथ कौन सा बोला आपने? वो 3 बूथ है मेरा, 14, 15, 16। और ये 3 बूथ में कैसे पहुंचे, मतलब बुरा मत मानिए,